ગુડ આફ્ટરનૂન. 4 જ જણા, બીજા બધા કોઈ આવવાના નહીં? મેમ આજનો લેક્ચર કેન્સલ કરી નાખો. ઓલ એબ્સેન્ટ કરી દો એમ, ઇન્ક્લુડિંગ તીર્થ. અરે મેમ અમે તો આવ્યો, અમાર પ્રેઝન્ટ કરીને હવે લેબ કેન્સલ. તું એ સજેશન આપે છે ને લેક્ચર કેન્સલ કરી નાખવાનું. લેબ કેન્સલ કરી નાખો. બહુ ઓછા છે યાર. કેમ કંટાળી ગયા કે શું બ્લોકચેન થી? હવે એવું લાગે છે. અરે મેમ હજુ અટેન્ડન્સ લઈ છે. શું છે? પ્રીવિયસ લેક્ચર ની અટેન્ડન્સ ચાલુ છે એટલે. અચ્છા અચ્છા, એવું છે. ઓકે. હા. પ્રાચી મારી અટેન્ડન્સ પૂરો. અરે મેં તો લીવ થઈ ગઈ, હવે તું કરી દે. સતીશ સર નો છે ને? હા. મારી બરાબર. मेरी भी अटेंडेंस है। હા ઓકે. वैसे मैं भी सेम ही हूँ तेरे साथ लास्ट ईयर। હવે તમારામાંથી કેટલા લોકો લેપટોપ લઈને બેઠા છે, એટલે ઉબુન્ટુ લઈને? હું તો ગાડી લઈને બેઠો છું. તારી વાત તો અલગ જ છે, તારું સ્વેગ અલગ છે, તને કઈ કહેવાનું નહીં. મેમ ઇન્સ્ટોલ નહીં કરી હજુ. मैं ये बोलूँ ना, તીર્થ મ્યુટ રે ભાઈ, બહુ અવાજ આવે. ઓકે, વાંધો નહીં. તમે લોકો ઉબુન્ટુ એપમાં ટ્રાય કરો. મારું નથી થતું, મારું હોમ વર્ઝન છે. તમારું પ્રો વર્ઝન હોય કોઈની પાસે વિન્ડોઝ તો ટ્રાય કરો, કે કોઈ વર્ચ્યુઅલ મશીન કર્યું હોય તો એમાં ટ્રાય કરો. બટ આઈ વોન્ટ યુ ટુ ડુ વિથ મી. ઓકે, ની થાય ઇટ્સ ઓકે. મતલબ આજે કરવાનું મેન્ડેટરી નથી. મેં 15 ઓગસ્ટ સુધી તમને ટાઈમ આપ્યું છે, સો આઈ વિલ સ્ટીક ટુ ધેટ. યુ હેવ ટાઈમ. બટ સાથે સાથે કરો તો તમને વધારે સમજ પડશે. નહીં તો આ વર્ડ ફાઇલ મેં બનાવ્યું છે તો હું આપી જ દેવાની. બટ આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ ઈચ એન્ડ એવરી સ્ટેપ હાઉ યુ આર સપોઝ ટુ ઇન્સ્ટોલ એવરીથિંગ. ઓકે, લેટ્સ જસ્ટ વેટ 2 મિનિટ્સ મોર. આવા દો બીજા બધાને, પછી ચાલુ કરીએ. મેમ યુબન્ટુ ની જે એપ જે છે ને તે તો ખાલી કમાન્ડ લાઈન ઇન્ટરફેસ છે. હા એટલે એટલે ખબર UI છે. નથી. એમાં મેં પહેલા તો મેં એમાં જ ટ્રાય કર્યું હતું કે એપમાં થાય છે તો, બટ નથી થતું એમાં. એટલે બેસિક કર્લ ઓલ્સો આઈ એમ નોટ એબલ ટુ ડુ ઇટ. ઓકે, દેન હા. યા ઇટ્સ બેટર યાર. ઉબુન્ટુ કરી લો ને, ઉબુન્ટુ કામ લાગશે. તમે ઇન્સ્ટોલ કરી લો 2.5 GB થોડુંક મેનેજ કરીને, 2-3 અરે ફોન લઈને. વર્ચ્યુઅલ બોક્સમાં થઈ જાય છે. હા, વર્ચ્યુઅલ બોક્સમાં થાય છે તો સરસ, તો એમાં જ કરો. ચલો, આવી ગયા. સફિશિયન્ટ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ઓકે, સો ફર્સ્ટ થિંગ, આઈ હોપ સ્ક્રીન ઇઝ વિઝિબલ ટુ એવરીબડી. તો હવે લેટ મી સ્ટાર્ટ. યા મેમ આ વચ્ચે કઈક આવે છે. શું આવે છે? હવે દેખાય છે? હા હવે બરાબર. પેલું તમારું ઝૂમ હા. વાળું આવતો હતો? હા બસ એ જ આવતું હશે. અચ્છા, ઓકે, ચલો ડન. મેડમ મારી 23 તારીખમાં અટેન્ડન્સ નથી આવી. કોણ છે આ 23 તારીખ અટેન્ડન્સ વાળું? 56. 56. અને 8 તારીખમાં. તું ના એક પ્રોગ્રામ મને લેબમાં હું કરાવું, તરત મને કરીને બતાવી દે ને. જૂના હમણાં તારા નેક્સ્ટ જેટલા છે ને લેક્ચરમાં તમને મેં કીધું હતું, નેક્સ્ટ લેબમાં મેં તમને કીધું ઘડીક વેઇટ કરો, મારે થોડુંક લેપટોપ ચોંટતું હતું. જો તું આવ્યો હોય તો મેં પ્રેઝન્ટ કરી રહ્યો. તું કાં તો ચેટમાં નથી લખ્યો, કાં તો મેં લાઈવ લેવાની હતી એ દિવસે તું મતલબ હતો નહીં, એ કાં તો એટેન્ડન્સ લખીને ના, ભાગી ગયો હશે. ચેટમાં તો હું લખી જ નાખું છું તરત જ તે. હા, તું તરત લખીને ભાગી જાય છે એવું કઈ છે? ના ભાગી થોડું જાઉં, તમારે તમને રેન્ડમ પૂછવાનું. સારું, ચલો હવે શાંતિ રાખ, ચલાવી લો. પછી ખૂટતું હોય ત્યારે જોઈશ, અત્યારે નહીં. ઓકે ઓકે. ઓકે, ચલો લેટ્સ ડુ ધીસ. હા, તો સૌથી પહેલા આ બધું રહેવા દો. આ બધું તો મેં એમ જ જોતી હતી ખાલી. ઓકે, સો સૌથી પહેલા તમારે શું કરવાનું?
sudo dpkg reconfigure locales. Now what is dpkg? આ જે હોય ને આ તમારા પેકેजेस માટે એક મતલબ અંડરલાઇંગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં તમારું એક સોફ્ટવેર જેવું માની લો એવું છે ડીપીકેજી જે શું કરે તમારે કોઈ બી વસ્તુ ઇન્સ્ટોલ કરવાનું હોય કે અનઇન્સ્ટોલ કરવાનું હોય એના માટે બધી એન્વાયરમેન્ટ તમારું સેટ કરે ઓકે કોઈ બી રીતનું તમે કઈ બી નવી વસ્તુ ઇન્સ્ટોલ કરવા માંગો છો then at that time you will have to matlab not you but the system will have to change itself right to accommodate something new. So for that in Ubuntu and also in Debian operating system there is dpkg. તો આ તમારે સૌથી પહેલા કરવાનું આ નહીં કરો તો પ્રોબ્લેમ આવી શકે એરર આવી શકે in future. So first do sudo dpkg reconfigure locales. Okay તો તમારું એન્વાયરમેન્ટ જે બી છે એમાં તમારે પાર્ટ પાડવાનું જે બી ચેન્જીસ કરવાનો એડજસ્ટ કરવાનું મેમરી નવી વસ્તુ આવે કે જૂનું વસ્તુ કાઢો એના માટે for that you will have to do this. Okay એના પછી અપડેટ કરો અને અપગ્રેડ કરો. અપડેટ અને અપગ્રેડમાં બહુ મેસિવ ફરક છે. અપડેટમાં શું થાય જેટલા ડિટેલ છે ને આપણા કોઈ વસ્તુ જૂની છે એને અપડેટ કરી દો ઓકે એટલે જૂના વર્ઝન છે ને નવા વર્ઝન કરી દો અને અપગ્રેડમાં શું છે કે જૂના નવા તો અપડેટમાં થઈ ગયા પણ કોઈ વસ્તુ મિસિંગ છે તો એ ડાઉનલોડ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરો એટલે નવી વસ્તુ according to our requirement નવી વસ્તુ નાખવા માટે you have to do upgrade and for just पुराना वर्जन को नया वर्जन करने के लिए you need to do update. Okay तो पहले अपडेट करना उसके बाद अपग्रेड करना. Okay अगर आप साथ साथ में कर रहे हो तो करते रहो and if you are not doing then just listen. आपको ये करना है आप घर पे करना फिर फ्री टाइम में ठीक है. अगर अभी लैब के टाइम में करते हो then ठीक है otherwise do it on your own if you don't have it. So before 15th August, I need this entire thing. Not okay. Take it 15th August. वैसे तो next week से मैं चालू कराऊंगी, but you can take till 15th August. Okay? सबके बारे में बोल रही हूँ. Even तीर्थ का भी रह नहीं जाना चाहिए. ठीक है? So update upgrade करने के बाद after that you will have to install curl. ठीक है ना? Curl is for મેમ તીર્થમાં શું કરવાનું છે? આ બધું ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે. ઓકે પહેલા લેપટોપ લેવું પડશે. કેમ લેપટોપ નથી? નહીં કાઈ નહીં જે હોય તો આ બધું 15 ઓગસ્ટ પહેલા બધું કમ્પ્લીટ કરી દેવાનું એટલે ખાલી ઇન્સ્ટોલેશન કમ્પ્લીટ કરી દેવાનું ઓકે. સો સૌથી પહેલા તમારે ડીપીકેજી રિકન્ફિગર કરવાનું ફોર વોટ પર્પઝ કોઈ બી અનઇન્સ્ટોલેશન કે ઇન્સ્ટોલેશન કરો છો તમે સો ફોર ધેટ ટુ એડજસ્ટ યોર એન્વાયરમેન્ટ મતલબ ઉબુન્ટુના જો બી એન્વાયરમેન્ટ છે જે બી જેટલા મેમરી કે જે બી કરવાનું હોય so for that you need to do dpkg. अपडेट करोगे तो अपडेट का मीनिंग क्या है पुराने वर्जन को नया वर्जन करना. अपग्रेड का मीनिंग क्या है कुछ मिसिंग चीजें हैं तो उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना ठीक है अकॉर्डिंग टू आवर सिस्टम्स रिक्वायरमेंट. अभी कर्ल इंस्टॉल करना है आपको तो sudo apt install curl. अभी बेस्ट चीज उबुंटू का क्या है कि इंस्टॉलेशन के लिए बहुत इजी सा कमांड है एंड द इवन बेटर थिंग इज कि अगर आपने गलत कमांड लिखा है या कर्ल आपके में नहीं है या आप फाइंड करने की ट्राई कर रहे हो then it will automatically give you the command. मतलब कि अगर कोई चीज आपके में नहीं है तो भी ये सजेशन में देता ही है ठीक है. तो आप डायरेक्टली वहां से भी कर सकते हो बट दिस इज मोर इजियर वे. ओके नाउ कर्ल का काम क्या है कोई भी सर्वर रिसीवर के बीच में आपको इंटरेक्शन करना है फॉर दैट यू नीड कर्ल. तो आई डोंट नो वो लोग है कि नहीं जस्ट है यस मैम जस्ट टेक सम नोट्स ओके फॉर योर प्रोजेक्ट. यस मैम હા તો એમાં શું છે કે કોઈ બી તમે વેબસાઇટ બી બનાવો છો કે જે બી છે તો એનામાં તમારે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ઇન્ટરેક્શન કરવાનું હોય કે ક્લાયન્ટ સર્વર જોડે ઇન્ટરેક્શન કે એની કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ટરેક્શન बिटवीन टू थिंग्स देन एट दैट टाइम यू विल यूज कर्ल. ओके तो कर्ल मेरे में इंस्टॉल करने के लिए अभी ऑलरेडी मेरे पास है तो देखते हैं कर्ल का वर्जन कौन सा है -- वर्जन. ओके तो सबसे रिसेंट वाला ही है. So it is 7.68.0. This version I am having right now. ठीक है तो आप भी देख लेना और हाँ चलो आगे आता है तब बताती हूँ मैं. So this is my curl. Okay. उसके बाद आपको Docker इंस्टॉल करना है. Now Docker is for what? Docker will give you a platform. Will help you in creating GUI. Easy करने के लिए Docker and Docker Compose are both जैसे Hyperledger Fabric and Hyperledger Compose एक के ऊपर एक आर्किटेक्चर में उस तरह के है Docker and Docker Compose. ठीक है. So let us see Docker का वर्जन मेरे पास कौन सा है
ये सबसे रिसेंट वाला ही है क्योंकि मैंने रिसेंटली किया है, तो आपको भी अभी करोगे तो यही मिलेगा। बट अगर दूसरा वर्जन आप लेते हो तो यू माइट हैव टू मेक सम चेंजेस। तो इसलिए जो मेरा वाला वर्जन मैं कर रही हूँ वही वर्जन पे रहो तो हम मतलब कि एरर्स कम आएंगी और हम साथ में सॉल्व कर पाएंगे ऐसा, ठीक है। सो डॉकर हाइफन वर्जन आप लिखते हो, देन इट इज 19.03.8। सो अगर आपके पास नहीं होगा और आप डायरेक्टली अगर डॉकर हाइफन वर्जन लिखते हो तो आपको बोलेंगे नो डॉकर नॉट फाउंड या ऐसा कुछ एरर आएगा, एंड ट्राई इंस्टॉलिंग डॉकर यूजिंग sudo apt install docker। तो ये जो सिंटैक्स है ये भी आपको बता देंगे, ओके। सो नेक्स्ट इज माय डॉकर कंपोज। तो डॉकर कंपोज का डॉकर हाइफन कंपोज वर्जन, इसका वर्जन देखते हैं 1.25.0, ठीक है। सो दिस इज माय डॉकर कंपोज वर्जन। अभी पाइथन आपके पास कौन सा है, 3.7 होगा, बट इसमें चलाने के लिए हाइपरलेजर करने के लिए पाइथन 2.7 लो। एक्चुअली मैंने गूगल पे जितना भी ढूंढा ना हाइपरलेजर के लिए सब लोग 2.7 यूज कर रहे हैं। तो 3.7 अगर हम करते हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर हमको ऐसी एरर अगर कोई आती है जिसका सोल्यूशन हमें गूगल पे नहीं मिलेगा तो फिर हम स्टक हो जाएंगे। इसलिए वही करते हैं जिसके सोल्यूशंस गूगल पे अवेलेबल है। जब 100% हमारा वर्क हो जाएगा, आफ्टर दैट वी कैन ट्राई टू गो फॉर other versions, right? So let us just find the most compatible one. So मैंने already Python 2 install कर लिया है, so let us see। ऐसे आपको करना है, sudo apt install Python मत लिखना या 2.7 मत लिखना, Python 2 ही लिखना सर। मैंने क्यों बैग गिरे? शू कुछ बोलना है किसी को? नहीं, सॉरी मैम, सॉरी, बोलना नहीं। प्लीज स्टे म्यूट। ओके, डाउट है तो ही आप अनम्यूट हो, नहीं तो आवाज आती है मेरे को। ओके, सो पाइथन 2 वर्जन, ओके। तो इसमें 2.7 18 RC1, दिस इज द वर्जन व्हिच इज वी आर हैविंग इन पाइथन 2, ओके। नाउ गोलैंग गो, गोलैंग गो किसके लिए है? ये हम लोग, गो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अभी आज सुबह को मैंने आपको पीपीटी दिखाया था, हम पीपीटी जब पढ़ रहे थे उसमें थियोरेटिकली पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि जब फाइल्स मैंने आपको दिखाया था तो उसमें बहुत सारे टाइप के फाइल्स थे। एक था BNA फाइल, राइट, बिजनेस नेटवर्क आर्काइव फाइल हमने देखा था। फिर उसमें क्वेरीज की भी फाइल थी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट की भी फाइल थी। तो बहुत सारे लैंग्वेज आपके यूज होने वाले हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लैंग्वेज यूज होगा, ठीक है। आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए यू विल यूज अ डिफरेंट लैंग्वेज, टू मेक अ GUI यू विल यूज डिफरेंट लैंग्वेज, डेटाबेस में स्टोर करोगे चीजों को, दैट विल बी अनदर लैंग्वेज, ठीक है। सो वैसे गो लैंग्वेज भी यहाँ पे यूज हो रहा है, तो फॉर दैट यू विल हैव टू इंस्टॉल sudo apt install golang go। सो इसमें अगर मैं गो हाइफन वर्जन इफ आई एम राइटिंग, तो इसमें नंबर नहीं देता है। गो के अंदर जितनी भी चीजें अवेलेबल है ना, उसका हेल्प वाला जो कमांड होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। गो का हेल्प अब ओपन हो जाता है कि इसमें किस चीज से क्या होता है। तो इसमें वर्जन नहीं है, बट ये हेल्प अगर ओपन हुआ दैट मीन्स आपका सक्सेसफुली गो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद Node.js आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो Node.js के लिए अगेन मतलब इंस्टॉल मैंने कर लिया है, सो आई एम नॉट री राइटिंग दिस स्टेप अगेन, वरना कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसमें ऑलरेडी देयर ऐसे ही आएगा। तो node-v, इसमें हाइफन वर्जन नहीं, इसमें स्मॉल v लिखते हैं। तो दिस इज माय 10.19.0, दिस इज माय वर्जन, ओके। अब ये npm और Node.js किस लिए यूज होगा? ये जावास्क्रिप्ट के लिए, दोनों चीजें, ठीक है। npm करने में आपको काफी टाइम लगेगा, वैसे ये सारी चीजें करने में ही आपको काफी टाइम लगेगी, बट npm विल टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, तो इसलिए थोड़ा टाइम लेके बैठना जब भी करते हो। npm ऑल्सो आई हैव डन, इसका वर्जन मेरा है 6.14.4, ठीक है। तो यहाँ तक इंस्टॉलेशन आपको पता चल गया क्या किया है, मतलब क्या हो रहा है। बहुत सारे पाइथन भी यूज हो रहा है, जावा भी यूज होगा, जावास्क्रिप्ट भी यूज होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ कहाँ यूज होगी वो हमको आगे पता चलेगा जब हम एक्चुअल बनाएंगे, फाइन। डॉकर, लेट मी जस्ट डू अ क्विक रिविजन। dpkg इसलिए रिकॉन्फ़िगरेशन आपके एनवायरनमेंट के लिए कि कोई भी नई चीज इंस्टॉल कर रहे हो या अनइंस्टॉल कर रहे हो, उसके लिए यू हैव टू रिकॉन्फ़िगर दिस। अपडेट करोगे, अपग्रेड करोगे। कर्ल इंस्टॉल करना है, ठीक है। कर्ल विल बी फॉर क्लाइंट सर्वर कनेक्टिविटी या किसी भी तरह की कनेक्टिविटी आपको देनी है उसके लिए। डॉकर एंड डॉकर कंपोज किसके लिए? एक अच्छा सा GUI बनाने के लिए, टू मेक इट मोर यूजर फ्रेंडली। पाइथन चाहिए, पाइथन, गो एंड Node.js, ये हमारा कोडिंग पार्ट, एकदम अंदर का कोडिंग पार्ट आ गया, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमको चाहिए। तो यहाँ तक
वी आर इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, ये जो स्टेप आपको दिख रहा है दिस थिंग, अब इसमें क्या हो रहा है, आप सारी चीजें डाउनलोड करोगे गिटहब से, राइट? तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन या कुछ भी चीज डाउनलोड करेंगे ना, कहीं से भी डाउनलोड कर रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग द डायरेक्ट कोड फ्रॉम देयर, वी नीड टू मेक सम चेंजेस, राइट? एग्जैक्ट आपके मशीन के साथ कंपैटिबल नहीं होगी। आप जो गिटहब का कोड ले रहे हो उसका वर्जन वो शायद 2 साल पहले डाला होगा, उसका वर्जन सेम नहीं होगा। तो अपडेट आपने किया है, बट इसको भी थोड़े से चेंजेस जो होंगे दैट यू नीड टू डू अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम। तो इसके लिए ऑटो CRLF को आपको फॉल्स करना है, एंड देन लॉन्ग पाथ्स को यू हैव टू डू ट्रू। लेट मी जस्ट रिमूव दिस, लॉन्ग पाथ ट्रू। इतना आप कर दोगे तो इससे आप जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो दैट थिंग विल बिकम ऑफ योर वर्जन ओनली, सेम वर्जन आपको मिल जाएगा। अभी ये वाली चीज जो आप कर रहे हो, ये एक्चुअल आप कोड डाउनलोड कर रहे हो, मतलब उठा रहे हो कोड आप कहीं से। सो नाउ ये मैं कर चुकी हूँ, इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो एक बार मैं एंटर मारूंगी तो ये काफी देर तक अटक जाएगा, बट आई हैव ऑलरेडी डन इट, सो आई विल शो इट टू यू। इसको होने दो, कोई बात नहीं, मैंने एंटर मार दिया, ठीक है। दिस curl-SSL ये लिंक है, यहाँ से आपका हाइपरलेजर फैब्रिक सैंपल्स डाउनलोड हो रहे हैं। अभी सैंपल्स डाउनलोड यहाँ पे होने शुरू हो गए। अब ये कहाँ पे स्टोर होगा, मैं कहीं पे गई नहीं, मैंने CD कुछ नहीं किया। वैसे आप बना सकते हो, mkdir करके एक हाइपरलेजर नाम का फोल्डर बना लेना, उसके अंदर ये सब डालना, मतलब CD करके उस mkdir करके जो फोल्डर बनाया था उसमें चले जाना। उसके बाद डू दिस स्टेप, दिस लास्ट स्टेप कर्ल वाला, तो उसमें आपका स्टोर होगा। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, डायरेक्टली रखा है। सो लेट मी सी ये कहाँ पे आया। ये मेरा सारे डायरेक्टरीज है, यहाँ से अदर लोकेशंस पे जाओ, उसमें कंप्यूटर, इसमें होम, आफ्टर दैट बनिशिका, डायरेक्टली इट इज हियर, ओके। तो इसके अंदर आई कैन मेक अनदर फोल्डर यूजिंग mkdir, उसके अंदर आई कैन स्टोर दिस, बट यहाँ पे मैंने कोई फोल्डर नहीं बनाया, इसलिए फैब्रिक सैंपल्स डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं। मतलब कि मेरे जो बनिशिका नाम का ये जो है, इसके इधर ही स्टोर हो रहा है डायरेक्ट, ठीक है। सो लेट अस सी फैब्रिक सैंपल्स में मेरा क्या है, ओके। बेसिक नेटवर्क, अब बेसिक नेटवर्क में एक नेटवर्क बना हो, ये सब हम देखेंगे बाद में, चलो ना अभी ओवरव्यू दे देती हूँ। नाउ चेन कोड, टुडे मॉर्निंग वी डिस्कस्ड अबाउट चेन कोड। किसी ने सुना था चेन कोड का दूसरा नाम क्या है? मैंने बोला था सुबह को, किसी को आता है, याद है? सुन ही नहीं रहे थे ऐसा? हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है कि सो गए सब? आ रही है ना मैम आवाज। ओके, आवाज आ रही है, आता नहीं है, ऐसा है, राइट? ओके फाइन। सो चेन कोड का मीनिंग ऐसा है, चेन कोड मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हम बिजनेस की बात कर रहे थे, बिजनेस ओरिएंटेड टर्मिनोलॉजी हाइपरलेजर काफी स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। मतलब कि ब्लॉकचेन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। मतलब हम कोई भी अभी एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसको हम डायरेक्टली ब्लॉकचेन नाम नहीं दे सकते, उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, तो डी एप्स। फिर हमने देखा था चेन कोड वाज व्हाट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेन कोड बोलते हैं, ठीक है। वो सब हम बनाएंगे। फर्स्ट नेटवर्क वी विल सी इन द नेक्स्ट लैब। उसमें ये जो है बिल्ड योर फर्स्ट नेटवर्क, BYFN, इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, फिर देखेंगे कैसा बनता है फर्स्ट नेटवर्क, ठीक है। देन वी विल सी फैबकार आल्सो। ये सारी चीजें वी विल सी इन द फ्यूचर कमिंग लैब्स। इसको आप डाउनलोड होने देना, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया, वो पुराना वाला जो फैब्रिक सैंपल्स थे वो रिप्लेस हो रहा है, ओके, नथिंग एल्स। सो दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इतना ही समझाना था मुझे आज कि आप लोगों को इस तरह से इंस्टॉल करना है, ये मैं दे दूंगी। अभी एनीबडी वाज डूइंग विद मी, किसी का हुआ है तो आप बता सकते हो स्क्रीन शेयर करके कि आपने ऐसा किया है, या अगर आपका उबंटू ऐप में हो रहा है जो कि मेरा नहीं हो रहा है, इफ इट इज वर्किंग देन यू कैन शो। वर्चुअल मशीन में हो रहा है तो भी आप दिखाओ कितना किया, किसी ने कुछ किया? हाँ मैम, ચાલુ કર્યું છે।
ઓકે બતાવવા માંગો છો સ્ક્રીન શેર કરીને? હા સ્ક્રીન શેર કર હા પરમિશન યસ યસ લેટ મી સ્ટાર્ટ ધ શેર. ઓકે કરો સ્ક્રીન શેર. ઓકે હાલો હા ઓકે શું ઇન્સ્ટોલ ઇન્સ્ટોલ કરો છો? થાય છે આ કયો? અપગ્રેડ વાળો કમાન્ડ રન કર્યો છે. અપગ્રેડ વાળો ઓકે હા વાર લાગશે વાંધો નહીં. सरस एटलीस्ट यू हैव स्टार्टेड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. ओके सो बाकी लोग भी ऐसे ही करो मतलब टाइम टू टाइम आप करोगे तो बहुत अच्छा है. इसमें टाइम तो लगेगा नो डाउट, टेक योर टाइम नो इशू, बट करो यार तुम लोग कुछ मतलब वैसे तो अच्छे बच्चे हैं काफी सारे बट स्टिल यार मोस्ट ऑफ यू आर नॉट મારા જેવા. हाँ एज नाम लेवा નથી માંગતી હતી હું તે જાતે જ एक्सेप्ट કરી લીધો તો સારું. चलो ठीक है. और कोई डाउट है किसी को तो बोलो, अदरवाइज आई एम डन. आपको शेयर करके कुछ बताओगे नहीं? सो इट इज डन. नो डाउट्स? ओके सो अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं, मैनुअली लूंगी. चैट में लिखने का फायदा नहीं है तो लिखना मत बेटा. मैम सैटरडे का टेस्ट का क्या है? 12 o'clock के बाद कभी भी देना है ना? 12 o'clock से चालू है. मैंने रात के 12 बजे तक रखा है, मतलब पूरे दिन का टाइम दिया है. मेरे को पता नहीं था आप कब फ्री हो, और वैसे भी तो ऑनलाइन एमसीक्यू है तो आप कैसे करोगे वो पता ही है मुझे. सो कर दो बस. हाँ 12 बजे के बाद शुरू हो रहा है. लेट मत करना. Okay, एक भी अगर किसी का रह गया आई विल नॉट कंसिडर दैट. ठीक है तो उसमें 0 ही जाएगा. तो आप एटलीस्ट डू इट जैसा भी होता है. 12 o'clock से रात के 12 o'clock तक चालू है. 10 क्वेश्चंस है, एमसीक्यू है सारे. ओके ओके मैम. या ओके वेट 1 सेकंड. अटेंडेंस या ओके 23 बच्चे हैं. कौन एब्सेंट है सिर्फ वही देखना है. એટેન્ડન્સ शांति राख. इनको कांटेक्ट नहीं करना. सुमित है. એટેન્ડન્સ दूसरा तेरे को एयरपोर्ट से फ्री तने रिमूव કરીને એબ્સેન્ટ કરી દઈશ જા. ओके एचपी को फ्री में एयरपोर्ट से लेके गया ओरिजिनल. નહીં है. Siddhi is there, Mohil is there, then Bhavya है वो. Bhavya Joshi is not there. Okay, absent. Prachi is there. गौरांग है, भाविन है, मनन है, प्रतीक है, वत्सल है, तीर्थ है, पूजन है, जय ठक्कर है, कैनिल है. તીર્થ છે મેમ. ओके शांति राख. हुई जाने. शौनक नहीं है? મેમ તીર્થ પ્રેઝન્ટ. चुप रहना तू. मैडम वो निकल गया, वो नेट प्रॉब्लम से. अच्छा तो आया था शौनक? हाँ मैडम आया था, वो निकल गया नेट प्रॉब्लम से. मैंने अभी उसको कॉल किया, निकल क्यों गया वो. ठीक है चलो कोई बोला बात नहीं, net- कोई बात नहीं. चलो जानवी छे, जश छे, रिया छे, ध्रुवी छे, मेघा इज देयर, प्रिया इज देयर. ओके राहुल नामदास इज देयर. ओके અરે કર લે. अब बोल કરને એક મિનિટ. किया. મેડમ वो મોહિત પ્રેઝન્ટ. कौन प्रेजेंट? चलो आई एम डन. आप लोगों को डाउट नहीं है तो यू कैन लीव. और इफ यू वांट टू कोई और किसी को दिखाना है स्क्रीन शेयर करके तो दिखा भी सकते हो. મેમ અપલોડ કરી દેજો જે લિસ્ટ હતી ને કમાન્ડ ની. हाँ बस रेकॉर्डिंग जोड़े अपलोड कर दी से.